अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस दो सेशन में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बात की थी। उसी के सिलसिले में आज हमारा ये तीसरा सेशन है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम एमसीक्यूज में हमसे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो पैथोलॉजीज आते हैं, उस पैथोलॉजीज को मैनेज किस तरह किया जाता है। लेकिन पैथोलॉजीज को मैनेज करने से पहले थोड़ा सा हम दो सेशन में जो हमने पढ़ा था, थोड़ा सा हम एक रिकैप दे देते हैं। हाँ, हमने सबसे पहले जो है मिलर पिरामिड पर बात की थी। मिलर पिरामिड के बाद हमने टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज पर बात की थी। देन वी डिस्कस द एनाटमी ऑफ एन एमसीक्यू एंड देन डिस्कस द पैथोलॉजीज ऑफ एमसीक्यू। So we discuss in detail the Miller prism or the Miller pyramid, then the different types of instruments which can be used to check the knowledge assessment. These were the two types of question, true, false, and one best answer. Then we discuss the benefits, advantages, or we can call the strength of MCQ as well as the weakness of MCQ. Then we discuss S structure MCQ, the parts of S structure MCQ. We discuss what is context-free and context-rich MCQ. Then we discuss what is text-alone and illustrated text-free and text-rich MCQs. In this slide, we discuss those VCQs, the best choice question. Then we discuss the extended matching question or the R-type MCQ. This was an example for that EMQ. Here we discuss some rules for the construction of MCQ. With some examples then. Then we discussed how we can construct a patient vanity. So these are actually the requirement for the construction of vanity. Uh, to construction of that scenario for the multiple choice question, which will include the age, gender, site of care, present complaint, duration, patient history. There is a room for some flexibility, specifically in this end. What we are going to ask, we are going to ask about the most appropriate management, the most appropriate and most possible accurate diagnosis, are the next step after the steps discussed. These are the examples. Then we discuss in detail the pathologies of MCQ, which were in two categories: the content under representation and the construct irrelevance variance, which we call simply as the CIV. We discuss in detail the sources of CIV, how these sources they lead towards that CIV, and then we discuss the CU, construct under representation, and what are the examples of the CU. So today in this lecture, we will discuss that how we can avoid these pathologies, how we can avoid the CU and how we can avoid the CIV. If we are unable to avoid, how we can reduce them. So there are ways, there are tactics through which we can manage and we can reduce the chances of these such pathologies. Because consider yourself in the following scenario. You are preparing an end course exam for your immunology course, that may be any course, and you want to make sure your students have mastered the important material from the course, and you have a bank of 200 multiple choice question on immunology topic from a collaborative project with other immunology course instructors. How do you determine which question to use on your exam to ensure your test is a high quality, reliable, and defensible indicator of your students' knowledge? बैंक तो हमारे पास है, सब्जेक्ट हमने खत्म किया है, कोर्स सारा कंप्लीट हुआ है। अब इन 200 एमसीक्यूज में से हम सपोज 50 एमसीक्यूज या 100 एमसीक्यूज हैं,
हम किस तरह जो है करेंगे, हम क्या करेंगे, किस तरह करेंगे कि जिससे हमारा ये जो टेस्ट हम बना रहे हैं, ये जो पेपर हम बना रहे हैं, ये पेपर जो है इट शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी। इसके एमसीक्यूज कंस्ट्रक्शन जो है ये अप्रोप्रिएट हो, हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्टेड एमसीक्यूज हो, दे आर रिलायबल, दे आर डिफरेंशिएबल एज वेल। So the best solution for such scenario is the blueprint. Creating a test blueprint will help you plan which question to include in your exam and ensure that it adequately assesses the learning objectives of the course. अब टेस्ट ब्लूप्रिंट जो है ये होता क्या है? It actually it is a framework. It is a tabulated form इस तरह which actually defines the knowledge and skills you want to assess and enable you to build the purpose-driven successful assessment. Similarly, a blueprint may also help you identify areas where your question pool may be lacking. अब इसकी बेनिफिट्स क्या है अगर हम ब्लूप्रिंट यूज करें? ब्लूप्रिंट के एग्जांपल्स हम अपकमिंग स्लाइड्स में देंगे। थोड़ा सा इसके बारे में देखिए कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कि क्या क्या एडिशनल पर्पसेस के लिए हम जो है या मकासद के लिए हम ये ब्लूप्रिंट जो है यूज कर सकते हैं। तो द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द ब्लूप्रिंट प्रियर टू द दैट पेपर, हम सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें तो ब्लूप्रिंट जो है एक्चुअली ये पेपर बनाने से पहले एक प्रोसीजर है, और इसी प्रोसीजर इसी की बेस पर जो है हमारा पेपर जो है बेस्ट होगा। इसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, हमने सब टॉपिक लिखते हैं, इसमें हम थीम्स लिखते हैं और फिर देखते हैं कि हर एक थीम से हमने कितने क्वेश्चन देने हैं। अक्सर जब हम पेपर बनाने बैठ जाते हैं और सपोज हम न्यू एमसीक्यूज बनाते हैं तो एक लेक्चर से शुरू होते हैं, टोटल नंबर जो है हमने 70 बनाने हैं, फाइनल टर्म के लिए 70 एमसीक्यूज हमने बनाने हैं। अब उन 70 एमसीक्यूज हम बनाने शुरू हो जाते हैं, देयर आर टोटल 12 चैप्टर्स, और जैसे हम बनाते जाते हैं और जब व्हेन वी रीच द सिक्स्थ और सेवंथ चैप्टर तो हमारे 70 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगर हम ये पेपर सेंड कर देते हैं तो ये गलत इसलिए होगा कि इसमें से बिल्कुल जो लेकिंग आ रही है, दैट इज 5 चैप्टर, जब 5 यूनिट जो है उनकी लेकिंग आ रही है, उनकी अंडर रिप्रेजेंटेशन हो रही है, उसकी जो है बिल्कुल उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि और इसमें से ये भी है कि शायद एक यूनिट जो है दैट इज मोर कम्प्रहेंसिव, दैट इज मोर लेंथी, उसमें से लेक्चर ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर वन। जैसे मिसाल के तौर पर आप ले लें जो जीआईटी है, आप जीआईटी यूनिट जो है थोड़ा सा कम्प्रहेंसिव है एज कम्पेयर टू द सेल। सेल में आप ऑर्गेनाइज की बात करते हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट की आप बात करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड फिजियोलॉजी में जीआईटी हो गई या इस तरह की जो रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गई, दे आर क्वाइट कम्प्रहेंसिव। अब दे ये दोनों तो एक ही यूनिट है। अब इन यूनिट में चूंकि कोर्स डेज इसमें ज्यादा लगे हैं, लेक्चर्स हमने ज्यादा ली है एज कम्पेयर टू द अदर वन, इसलिए उनको वेटेज भी ज्यादा देंगे। तो ये हमें कैसा पता चलेगा कि कौन से लेक्चर्स के क्या वेटेज है? तो ये इसलिए ब्लूप्रिंट जो हमें ये बता दे देता है एक कितने कितने यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट की वेटेज कितनी है, और वेटेज के हिसाब से फिर आउट ऑफ टोटल जो इसके कितने एमसीक्यूज बनते हैं, हम परसेंटेज में वेटेज देते हैं। और फिर जब इसकी होगा तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये थोड़ा सा अच्छा होगा कि उनको पता हो कि भाई कहाँ कहाँ से हमने कितने कितने एमसीक्यूज जो आएंगे, एंड हमने जो है उसकी किस तरह उसको उसको भी जो एक स्टडी गाइड के तौर पर हेल्प दे रही है। बल्कि ये जो टेस्ट, ये ब्लू प्रिंट ऑफ द टेस्ट जो है या असेसमेंट जो है, दैट शुड बी द कंसिस्टेंट एंड शुड बी द पार्ट ऑफ द स्टडी गाइड। स्टडी गाइड क्या चीज है, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस सेपरेटली। इस पे हम एक सेपरेट सेशन लेंगे। व्हाट इज स्टडी गाइड, what are the content of study guide, how we can construct the study guide, what are the benefits of study guide। so एग्जांपल के साथ हम जो है स्टडी गाइड पर डिटेल से बात करेंगे। so आते हैं towards the benefits of the test blueprints। This blueprint will help ensure that your test
appropriately assess the instructional objectives of the course। और ये जो अभी हमने डिस्कशन की कि ये हमसे जो जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं, जो हमने पढ़ाए हैं, जो करिकुलम के मुताबिक है, वही जो है अप्रोप्रिएटली असेस होगा। उसमें से कुछ ऐसे नहीं होंगे जो दे विल बी प्रेजेंट एंड सम विल बी एब्सेंट, यानी अंडर रिप्रेजेंटेशन जो है ये नहीं होगी। सिमिलरली this blueprint would appropriately reflect key course goal and objectives the material to be learned। इसमें से जो नॉन इम्पोर्टेंट है उसमें शामिल नहीं होंगी। उसमें से जो हमने जिस पर एम्फेसिस दिया था, हमने जिस पर फोकस किया था, जिस पर टाइम दिया है, उसकी जो है वेटेज ज्यादा होगी और वही जो है एग्जाम में आएगा। Include the appropriate item format for the skill being assessed, as we are suppose knowledge assess कर रहे हैं, so there should be MCQ। और अगर हम जो है उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स देखना चाहते हैं तो उसमें से, या उसकी थोड़ी सी कम्प्लेक्स देखना चाहते हैं, सो माइट भी हम उसमें ऐसे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए वी कैन देन ऐड द OSPI, उसके लिए फिर अलग ब्लूप्रिंट है। ये जो ब्लूप्रिंट अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, दैट वुड बी ओनली फॉर द MCQ। एंड सबसे अहम जो इस ब्लूप्रिंट का बेनिफिट होगा, दैट वुड बी this blueprint can avoid the over or under representing a topic in your test। Suppose we have one topic, it should have 10 MCQ, और हमने उसके 25 MCQs दिए, so this is over representation। इसके 10 होनी चाहिए और हमने सिंपल सिर्फ एक MCQ उससे, या बिल्कुल एक भी नहीं है, दिस इज अंडर रिप्रेजेंटेशन। इस तरह अगर हम एडिशनल पर्पसेस जो है के लिए यूज कर सकते हैं ब्लूप्रिंट, सो दैट इज द it is blueprint that demonstrate the students the topics you value and serve as a study guide for them। ये जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया, ये उसकी एक स्टडी गाइड के तौर पर काम कर सकते हो। जिनकी वैल्यू वेटेज ज्यादा है उनको भी पता होगा कि इससे एमसीक्यूज जो है इतनी आएंगी। इट आल्सो फैसिलिटेट लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क और मेंटल स्कीमा फॉर स्टूडेंट्स। Framework, that is one of the important component of the blueprint, and how we can construct a framework we will discuss in the upcoming slide। It also ensure consistent coverage of exam content from year to year। So ये जो इनकी consistency है about that exam content, that ये reliable होती है, ये remains uniform। It also communicate course expectation to the stakeholders, for example the trainees, other faculty, administration। So, what are the contents? What are the components of the test blueprint? A test blueprint is a list of key components defining or including the content framework, testing time, and the content weighting, which we can also call as the number of items per content area। इसके अलावा आप जो है इसमें पर्पस ऑफ टेस्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा आप, अगर आप मल्टीपल MCQ, मल्टीपल जो है असेसमेंट मेथड्स आप डालना चाहते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट डालना चाहते हैं, तो इसमें से एक वो भी इंक्लूड कर सकते हैं कि इसे क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, या जो है ये MCQ होंगी, A टाइप होंगी, R टाइप होंगी, तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। द पर्पस ऑफ द टेस्ट एंड द क्वेश्चन फॉर्मेट के साथ साथ जो है ये कंटेंट फ्रेमवर्क, टेस्ट इन टाइम एंड द कंटेंट वेटेज जो है, ये तमाम जो 5 चीजें जो हैं ये टेस्ट ब्लूप्रिंट की हिस्सा होंगी। तो सबसे पहले जो है कंटेंट फ्रेमवर्क जो है, अब कोर्स आउटलाइन जो हमारा कुरिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है, along with the following list can serve as starting point for identifying the content framework that will be part of it is blueprint। अब हम कुरिकुलम उठा लेंगे, कुरिकुलम के साथ साथ हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद द टेक्स्ट बुक टेबल ऑफ कंटेंट, lecture topic, presentation slides, patient cases, laboratory experiments, practice analysis and behavioral objectives। ये हम सब इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट शुड बी द फ्रेमवर्क, हमने जो है ये फ्रेमवर्क में क्या करना है। सही। अच्छा, अब कंटेंट वेटेज जो है ये
फ्रेमवर्क की बात आ जाती है कि जब हम हमारा एक जो स्कीमा या फ्रेमवर्क जो है, अगर हमने इसको आइडेंटिफाई किया है, then we should consider the importance of each topic in order to determine the best content writing for the test as a whole. The number of questions for each content area should reflect the importance of that content area. दो चीजें हैं जो वेटेज डिसाइड करते हैं, एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ दैट एरिया एंड सेकेंडली द लेंथ ऑफ दैट एरिया। जो सपोज आप वहां पे अपने उसको 10 लेक्चर्स ली हैं, दूसरी पर आपने 2 लेक्चर सिर्फ ली हैं, आपने एक पर 2 वीक्स जो है आपने उस पर इन्वेस्ट की है, स्टूडेंट्स को ने आपने 2 वीक्स उस पर टीचिंग की है, दूसरे को आपने सिंपल एक दिन टीचिंग की है। तो ऑब्वियसली दोनों का वेटेज जो है, दोनों से सेम क्वेश्चन नहीं आनी चाहिए, बल्कि जिन पर आपने ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, जिन पर ज्यादा आपने उसको टीचिंग किया है 2 वीक्स तक, उससे ज्यादा एमसीक्यूज आनी चाहिए। तो ये जो है कंटेंट वेटेज है, और ये चीज जो है ये अंडर जो रिप्रेजेंटेशन है या ओवर रिप्रेजेंटेशन ये अवॉइड करती है। अब जब हम वेटेज बनाते हैं तो ये नीचे के जो इस तमाम क्वेश्चंस हैं, दे कैन हेल्प अस टू डिटरमिन द वेट ऑफ ईच टॉपिक। हाउ मच ऑफ योर लेक्चर टाइम डू यू स्पेंड टीचिंग दिस टॉपिक इन योर कोर्स? हाउ मच टाइम or examine is expected to spend studying each topic area independently? And how much of the course textbook or lab time is devoted to this topic? How much of this topic will your students need to know as they move through their training? And what other topics should get about the same amount of test time as this topic? Suppose this is एक हमने एक कंटेंट वेटेज के लिए एक टॉपिक जो है बनाई। सपोज ये फिजियोलॉजी की सब यूनिट्स है या सब टॉपिक के बीच भी कॉल the different units are chapters, जिसमें से केमिकल कंपोजिशन ऑफ बॉडी, सेल स्ट्रक्चर है, सेल रेस्पिरेशन है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, न्यूरॉन पोटेंशियल, नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, मसल है, ब्लड है, एंड देन दैट इज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। अब यहाँ से हमने इनकी लेक्चर्स ऑफ डेज जो है लिखे हैं कि सपोज 1 3 2 3 3 एंड 2 1 4 2। अब यहाँ से इसी की हर एक से हमने क्या है कि एक लेक्चर जो है उससे 3 एमसीक्यूज आनी चाहिए या 4 एमसीक्यूज आनी चाहिए, यानी 3 to 4 एमसीक्यूज दैट शुड बी फ्रॉम ए सिंगल लेक्चर, अ सिंगल डे। सपोज केमिकल कंपोजिशन ऑफ बॉडी, उस पर हमने सिर्फ एक दिन जो है इन्वेस्ट किया है, हमने एक दिन इसकी लेक्चर्स दिए हैं, सो दे शुड बी 3 to 4 एमसीक्यू हमने यहाँ पे 3 लिख दिए। ये 3 to 4 इसलिए है कि देर शुड बी रूम फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हमने टोटल क्वेश्चन जो है ये बनाने हैं, तो फिर हमने जो है इसमें से जो है इसमें से माइनस प्लस कर सकते हैं। इस तरह सेल स्ट्रक्चर जो है उसकी 3 डेज लेक्चर थी, तो उससे 12 होंगी, 2 से 5 होंगे। अब यहाँ से देखिए इसमें ये चीज होनी चाहिए थी, लेकिन देयर शुड बी पॉइंट, देयर इज 5 क्वेश्चन। इसी तरह अगर आप यहाँ देखिए ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग पे, तो ब्लड की 2 लेक्चर डेज थी और ब्लड क्लॉटिंग की फिर सिर्फ जो है एक दिन था। तो यहाँ पे 2 लेक्चर डेज के लिए यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, विच अगेन टेल अस दैट दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। सपोज तो ये इसमें है कि जरूरी नहीं है, जैसे हमने कहा कि 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो डिसाइड करेंगे वेटेज। एक कि उसकी इम्पोर्टेंस ऑफ दैट टॉपिक, एंड सेकेंडली उसकी जो लेंथ है कि आपने उस पर कितना टाइम इन्वेस्ट किया। अब इन दोनों पर अगर आप देखें सेम डेज लेक्चर्स हुई हैं, वन इज द सेल रिस्पायरेशन और मेटाबॉलिज्म, उस पर भी 2 डेज है, वाइल ब्लड पर जो है भी 2 डेज जो है यहाँ पर, और इस तरह ब्लड क्लॉटिंग पर भी एक दिन था। तो यहाँ पे 2 डेज पर 5 एमसीक्यूज हैं, जबकि यहाँ पर एक पर 4 है और 2 पर 8 है। सो विच मीन दैट दिस टॉपिक इज मच मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ से एमसीक्यूज जो है यहाँ से बनेंगे भी अच्छे एमसीक्यू, और ये इट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट दिस वन। लेकिन हर एक का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, हर एक का जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। तो किसी बाज पे हमने एक लेक्चर से 2 ली हैं, बाज से हमने 400 2 3 और 4 जो है यहाँ से ये ली है, और ये टोटल। अब
जैसे हम एमसीक्यूज बैठने जाएंगे, केमिकल कंपोजिशन ऑफ बॉडी, तो हम 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं जाएंगे, हम बनाएंगे सिर्फ 3। और जैसे ही हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी तो 8 से हम बना लेंगे। इससे होगा क्या कि तमाम चैप्टर जो हैं, जो हमारे कुरिकुलम के हैं, वो भी कवर होंगे। और उन पर हमने जितना उनको पढ़ाया है उसी की बेस पर उनके तमाम क्वेश्चन जो यहाँ पर, ऑल द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, दिस इज जस्ट द वेटेज टेबल। इससे होगा क्या कि एक तो हमारे कोई भी टॉपिक जो है एमसीक्यूज के बगैर नहीं रहेगा। और दूसरा ये कि ओवर रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होगी, कि अगर अगर हमने हर एक से दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक से हमने एक ज्यादा, देयर इज अ लॉजिक फॉर दैट, कि हमने लेक्चर डेज के बेस पर उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाए हैं। इसके अलावा एक और भी कम्प्लेक्स हम बना सकते हैं, दैट्स वेरी सिंपल। वेटेज जो है हम उसको और भी कम्प्लेक्स कर सकते हैं, एंड दैट वी यू कॉल्ड एज द ब्लूप्रिंट मैट्रिक्स। ये ब्लूप्रिंट मैट्रिक्स जो है ये हमारे टॉपिक को और भी जो डिवाइड करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देखें, the following table shows a blueprint matrix with cardiovascular disease topic and physician task. The number refer to the number of question and tests that will address the content. For example, two question will assess the diagnosis of the ischemic disease. अब यहाँ पर देखिए हमने पूरी चैप्टर से सिर्फ दिए कि इतने एमसीक्यूज होंगे। अब ये हमने ये नहीं कि ये जो 3 एमसीक्यूज है या सेल स्ट्रक्चर पे यहाँ पे 12 एमसीक्यूज है, तो हमने ये जो है इस टेबल पे नहीं मेंशन कि ये 12 एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से आएंगे और सेल के किस एस्पेक्ट से आएंगे। यहाँ पे आप देखिए इस टेबल में कि सपोज दिस इन्फेक्शियस एंड इम्यूनोलॉजिक एस्पेक्ट्स ऑफ द कार्डियोवास्कुलर, या यहाँ सपोज देखिए हार्ट फेलियर या डिसरिथमिया है या न्यूप्लाज्म है। तो न्यूप्लाज्म में जो हेल्थ एंड हेल्थ मेंटेनेंस के 2 एमसीक्यूज आएंगी, न्यूप्लाज्म के डायग्नोसिस पे रिलेटेड 2 एमसीक्यूज, और इसके मैनेजमेंट की 1 एमसीक्यूज आएंगी। इस तरह अगर आप देखिए इसके में हार्ट डिजीज की, जिस यहाँ पे हमने डिस्कस किया, so there will be no MCQ related to the health and health maintenance of the ischemic heart disease, और इसके डायग्नोसिस की 2 क्वेश्चन होंगी एंड मैनेजमेंट की 1 होगी। इस तरह वेस्कुलर डिसऑर्डर जो है उसकी मैनेजमेंट की कोई क्वेश्चन नहीं होगी, उनके 2 क्वेश्चन मैनेज डायग्नोसिस के होंगे और 1 क्वेश्चन उसकी हेल्थ एंड हेल्थ मेंटेनेंस का होगा। तो इसको कहते हैं द ब्लूप्रिंट मैट्रिक्स। अगर हम यहाँ इन तीनों को करेक्ट कर ले, सपोज 2 1 2, तो ये 4 एमसीक्यूज बनते हैं। तो वेटेज में हम सिर्फ ये कहते हैं कि इन्फेक्शन इम्यूनोलॉजिक एक्सपर्ट्स ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दे विल बी 4 एमसीक्यू। न्यूप्लाज्म में जो है 5 होंगी, डिस्यूरेथमिया में दे विल बी 5 अगेन, हार्ट फेलियर में 3 होंगी, इस्केमिक हार्ट डिजीज में 3 होंगी। अब इन 3 में से दे विल बी नो एमसीक्यू ऑन द हेल्थ एंड हेल्थ मेंटेनेंस, ओनली डायग्नोसिस। इससे और भी स्टूडेंट्स की स्टडी गाइड हेल्प कर सकता है कि सपोज देयर विल बी नो एमसीक्यू ऑन द हेल्थ एंड हेल्थ मेंटेनेंस, तो वो जो है सिर्फ डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द इस्केमिक हार्ट डिजीज देखेंगे। तो इसको कहते हैं द ब्लूप्रिंट मैट्रिक्स। दिस इज द सिंपल टेम्पलेट फॉर दैट टेस्ट ब्लूप्रिंट। हम यहाँ पे सब टॉपिक लिख सकते हैं, सब थीम लिख सकते हैं, थीम लिख सकते हैं, चैप्टर्स लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, जो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दिस इज आवर फ्रेमवर्क, ये हमारा जो है फ्रेमवर्क हो गई है। सही है। फिर यहाँ पे हमने अगर आप देखें, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस टेस्ट मैट्रिक्स। इसमें ऑब्जेक्टिव जो है, सपोज पहला थीम जो है, दीज आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ब्लूम टेक्सोनॉमी। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं, हम जब ब्लूम टेक्सोनॉमी डिस्कस कर रहे थे, इसका जो कॉग्निटिव डोमेन था उसमें हमने कहा था कि पहला जो इसका लेवल 1 है, दिस इज रिमेम्बर, second is the understand, the third one is the apply, the fourth one is the analyze, the fifth one is the evaluate, and the last one is the synthesis or the create। अब ये जो है इस सब टाइप का, इसमें से लेवल 1 के कितने एमसीक्यूज होंगे, लेवल 2 की होंगे, या ये भी है कि देयर विल बी नो एमसीक्यू एट द लेवल 1 एंड लेवल 2, देयर विल बी ओनली 2 एमसीक्यू एट द लेवल 3। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक बॉक्स में देयर शुड बी सम डिजिट, बल्कि इस तरह है कि ये तमाम की भी हो सकते हैं और एक में भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक का कुछ ना कुछ जो है बॉक्स जो है ये फिल होगा। तो हम ये भी एक और तरीका है कि हम जो है एट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है, ऑब्वियसली जब रिमेम्बरिंग के क्वेश्चन होंगे, अंडरस्टैंड के क्वेश्चन होंगे, दैट विल बी मच इजियर।
then the question which will be related to the analyze and evaluate and apply or create, that will be required high level of thinking, critical think उसके लिए जरूरी होगा। तो ये भी है कि हम यहाँ पे हर एक टॉपिक पर हमने थोड़े से आसान लेवल वन की भी बनाने हैं, थोड़े से इजी क्वेश्चन भी बनाने हैं, और फिर हमने उसकी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनाने हैं। तो इससे होगा कि एक बैलेंस भी होगा, सारे टॉपिक जो है कवर भी होंगे, और एवरेज टेस्ट होगा। न सारे जो यहाँ पे इजी होंगे, न सारे यहाँ पे डिफिकल्ट होंगे। तो इस तरह का अगर हम ये ब्लूप्रिंट बना ले पेपर से पहले, तो इससे बहुत सारे हमारे पैथोलॉजी जो है ये अवॉइड कर सकते हैं। दिस इज अनदर एग्जांपल। इसी बेस टेम्पलेट के बेस पर जो है ये एक ब्लूप्रिंट है हमसे एमसीक्यू। सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट 2 1 2 3 4 5। यहाँ पे टोटल जो है दिस ये कंटेंट है कुरिकुलम का कि ये पहला चैप्टर ऑब्जेक्ट 1 जो इसका 30% है। सपोज वी वुड कंसिडर दीज चैप्टर्स, ये पहला चैप्टर हो गया, उसकी 30% ये। और ये वेटेज हमने उनकी टाइम जैसे हमने यहाँ पहले इसका डायग्राम बनाया था, इसकी बेस पर हमने इसके नंबर ऑफ टेस्ट जो है, या ये इससे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि टोटल जो इसका होगा कंटेंट लेक्चर्स, इसमें से इसकी कितनी होंगी, तो इससे हम उसका जो वेटेज है ये से हम निकाल सकते हैं। तो 30 25 15 20 विच मेक 100। अब ऑब्जेक्टिव वन की नॉलेज में से 4 एमसीक्यूज होंगी, कंप्रहेंशन की 4 होंगी, एंड एप्लीकेशन एनालिसिस जो उसमें से 12 होंगी। सो टोटल उसकी एमसीक्यूज होंगी 20। अब ये जो है उसकी, अगर हम इसमें से इंक्लूड ना करें, सिंपल ये देखिए दैट विल बी सिंपल ब्लूप्रिंट। बट ये जो है ये जरूरी इसलिए है कि स्टूडेंट को भी पता होगा कि हमने इसको किस लेवल की एमसीक्यूज कितनी आएंगे, और इसकी स्टडी गाइड के तौर पर काम करेगा। ऑब्जेक्टिव की नॉलेज के 4 क्वेश्चन होंगे, कंप्रहेंशन में 2 क्वेश्चन होंगे, एप्लीकेशन में 7 होंगे। इसी तरह आप देखिए टोटल 13 बच जाएंगे। इसी तरह ऑब्जेक्टिव 3 की 10 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव 4 की 10 क्वेश्चन होंगे, एंड ऑब्जेक्टिव 5 की या चैप्टर 5 की 7 क्वेश्चन होंगे। टोटल बनेंगे 60 क्वेश्चन। अब ये जो 60 क्वेश्चन का पेपर है, इसमें से जो है हम वी विल कॉल दिस एप्लीकेशन एनालिसिस एज द मोस्ट डिफिकल्ट। दिस आर द एवरेज एंड दिस आर द इजी क्वेश्चन। इनमें इनमें से 14 क्वेश्चन दे विल बी वेरी इजी, 15 जो हैं ये एवरेज होंगे, और 31 देयर विल बी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर भी हर एक उसको लेवल ऑफ डिफिकल्टी या जो है उसको भी जो है हर एक को एक मिलती है प्रोपोर्शन, और इसी तरह हर एक ऑब्जेक्टिव को भी मिल जाती है प्रोपोर्शन, और उसकी परसेंटेज के वेटेज के बेस पर जो है ये टोटल एमसीक्यूज बने। लेकिन अगर आप यहाँ देखिए उसकी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे 30% है, दैट इज 33.3%, दैट इज 25, देयर इज 21, देयर इज 15, देयर इज 16, 20, 16.7। तो हमने बिल्कुल जो है इसको नहीं कि भाई 30% है, सो देयर शुड बी 30%। 1 2 3 4% जो है ये हम थोड़े से अगर फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं, देयर शुड बी रूम फॉर दैट। बट वहां पे जो इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि ये इससे अंडर रिप्रेजेंटेशन हो जाए या ओवर रिप्रेजेंटेशन हो जाए, एंड दैट इज वाई वी शुड अवॉइड द कंटेंट अंडर रिप्रेजेंटेशन। दिस इज अनदर ब्लूप्रिंट। यहाँ पे अगर आप देखिए ये जिस तरह की ब्लू मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया था, ये इसी तरह एक अनदर एग्जांपल ऑफ द ब्लूप्रिंट मैट्रिक्स है कि जिसमें से ये रीनल कोर्स में डिफरेंट कंडीशन है, जैसे हाइपर नेट्रीमिया है, हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपोकिनेमिया है, एसिडोसिस, अल्कलोसिस है, आरएफ सीआरएफ, हेमेचूरिया है, प्रोटीनूरिया है, या एडिमा है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे उसकी जो वेटेज होती है, ये हर एक की वेटेज ऑन द बेस ऑफ द इम्पैक्ट एंड फ्रीक्वेंसी विच इज एक्चुअली द प्रोडक्ट वेटेज उसी की बेस पर आई है। सही है। और यहाँ पे अगर आप देखें नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं, ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, यानी अगर इस हमें हाइपरमेट्रीमिया जो है उससे 2 और 1 एमसीक्यू आएगा। यहाँ से इसी तरह हाइपोनेट्रीमिया से 4 या 5 एमसीक्यूज आएंगे, यहाँ से 6 या 7 आएंगे, और टोटल एमसीक्यूज है 60। तो ये जो है नंबर ऑफ आइटम्स है, ये वेटेज है।
अब ये जो 2 MCQs हैं या एक MCQ है, 1.5 हम 2 भी कर सकते हैं, हम 1 भी कर सकते हैं। इनमें से डायग्नोसिस की कितनी होंगी, इन्वेस्टिगेशन की कितनी होंगी, ट्रीटमेंट की कितनी होंगी, और इनमें से जो इनके जो बेसिक साइंसेज है उसमें कितनी होंगी। यहाँ से हम 1.52 कंसिडर करेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन डायग्नोस का होगा, यानी द क्वेश्चन विल बी वन क्वेश्चन बी रिलेटेड टू द डायग्नोसिस ऑफ द hypernatremia. Similarly, one will be related to the basic science of the hypernatremia. यहाँ देखिए बेसिक साइंस जो है कुछ टॉपिक के लिए नहीं है, कुछ के लिए इस तरह ट्रीटमेंट बास की है, बास की नहीं है, इन्वेस्टिगेशन बास की है। सिमिलरली डायग्नोसिस जो है सबकी। तो अगर आप देखिए, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ARF की डायग्नोसिस जो है, इस पर स्टूडेंट्स को ज्यादा फोकस करना होगा, बिकॉज इनकी जो MCQs है ये ज्यादा आएंगे। तो ये जो ब्लूप्रिंट मैट्रिक्स है, ये हमें दो तरह की, हमें भी हेल्प करता है कि हम जो है इन पैथोलॉजीज की बगैर जो है एक हेल्थी टेस्ट बना लें, और स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है कि ये उसी के मुताबिक उनकी स्टडी गाइड होगा, इसी के मुताबिक वो अपनी जो है स्टडी करेंगे और इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो ये इससे हमारे जो ओवर रिप्रेजेंटेशन या अंडर रिप्रेजेंटेशन है, ये हम इसके जरिए जो है काफी हद तक एवॉइड कर सकते हैं। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सच सिंपल ब्लूप्रिंट, जिसमें से ये हमारे नॉलेज के 25% होगी, अंडरस्टैंडिंग की 35 एंड एप्लीकेशन की 40%। दिस इज द C1, this is the C2, this is the C3 according to that cognitive domain of Bloom taxonomy. अब यहाँ पे SLOs जो है which mean the specific learning outcome, ये हमारे जो है 150 हैं। अब उनमें से हमने डिवाइड करना है, टीम 1 में से 35 है, टीम 2 जो है 30 है, टीम 3 40 है, एंड टीम जो टीम 4 उसमें 45 है। अब ये सारे के सारे जो आउटकम्स है, ये ऑब्जेक्टिव हमारे ये 150 बनते हैं। हमने इसको आउट ऑफ टोटल परसेंटेज दी है कि देयर शुड बी 150 अगर टोटल है तो उसमें से 35 इसके हैं, तो हो जाएगा 23। 150 में 38 to 100 में इसका 20 हो जाएगा। इस तरह यानी आउट ऑफ टोटल जो है इसकी जितनी है उसकी बेस पर इसकी वेटेज आई है। अब ये जो 35 इसका आउटकम है, उसमें से जो इनकी टोटल क्वेश्चन होंगे और 5 होंगे, 5 में से इस T1 की 1 विल बी रिलेटेड टू द नॉलेज, 2 उसकी C2 होंगी, और 2 क्वेश्चन उसकी होंगी C3 की। इसी तरह जो है टोटल हमारे 21 क्वेश्चन होंगे। उन 21 क्वेश्चन में 4 जो है ये C1 होंगी, 8 जो है ये C2 होंगे, एंड 9 जो है ये C3 लेवल की होंगी। अब असेसमेंट टूल जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि हम जो है ब्लूप्रिंट में एक कंपोनेंट में ये भी कर सकते हैं। अगर हम सिंपल मल्टीपल चॉइस यूज करते हैं, स्टूडेंट्स को भी पता है कि हम ए टाइप मल्टीपल चॉइस है, तो फिर तो इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन सम टाइम कुछ एग्जाम ऐसे होता है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी होती हैं, इसमें ऐसे टाइप के साथ साथ जो है मल्टीपल चॉइस होती हैं, ट्रू फॉल्स होती हैं, ए टाइप होती हैं, जो इसमें आर टाइप होती हैं, तो ये भी हमने फिर यहाँ पे लिखना होता है। Similarly, time allocated is 1 minute to A type and 2 minutes for the complex या R type MCQ. This is another example of that table of specification. कि जिस तरह हमने कहा कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिर्फ ब्लूप्रिंट जो है हम MCQ ही के लिए बना सकते हैं। हम इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट। अब टेस्ट जो है उसमें क्वेश्चन आइटम ऐसे टाइप होते हैं, इसमें आर टाइप MCQ है, ए टाइप MCQ है, इसमें से वो शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है, जो भी है ये हम किसी भी पर्पस टाइप टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं। तरीकेकार यही है कि हमने क्या करने, हमने जैसे यहाँ पे आप देखिए, दिस इज MBBS +2 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से हमने ये दिया है कि ब्लूप्रिंट फॉर थ्योरी पेपर 1, जिसमें जनरल पैथोलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के लिए ये एक ब्लूप्रिंट है। अब यहाँ टॉपिक लेके तो ये, और टोटल जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, ये टोटल नंबर टोटल मार्क्स होंगे। अब यहाँ पे टॉपिक्स लिखने के बाद जो है इनमें से लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन जो 10 मार्क्स के होंगे, एक हेमेटोलॉजी का होगा और एक इंफ्लेमेशन एंड रिपेयर का होगा, टोटल होंगे 10। बाकी इन टॉपिक में दे विल बी नो लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन। सिमिलरली शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन जो 5 नंबर का होगा, ये चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने लॉन्ग ऐसे दी है,
दैट्स व्हाई देयर शुड बी नो शॉर्ट इसे, हमने इनसे शॉर्ट इसे देंगे, और देयर विल बी नो शॉर्ट इसे और लॉन्ग इसे क्वेश्चन इन द क्लिनिकल पैथोलॉजी or the environmental and nutritional disorders. Then, if there is long essay question, so there should be no uh, short easy or the short answer question. यहाँ पे आप कुछ में बाद में हमने यहाँ पे दी हैं वन वन, और इसमें से क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड एनवायरमेंटल न्यूट्रिशन में सिर्फ देयर विल बी 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर होगा जो इसे टाइप में, बट देयर विल बी नो शॉर्ट इसे एंड लॉन्ग इसे। एमसीक्यू जो 1 मार्क का होगा, हेमेटोलॉजी में 4 एमसीक्यूज होंगे, इंफ्लेमेशन रिपेयर में 4 होगी, न्यूप्लीजिया में 4 होंगी, सेल इंजरी में 5 होंगी, एंड सो ऑन। सो इट मीन ये जो टेस्ट होगा इसमें इसके टोटल पेपर होगा, इस पेपर के टोटल मार्क्स होंगे 100। उसमें से जो है एमसीक्यू, अगर हम क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन पर बात कर ले, तो इसमें से 25 जो है एमसीक्यूज होंगे जिसके 25 मार्क्स होंगे। इनमें से जो है 5 शॉर्ट आंसर होंगे जिसके टोटल स्कोर 15 बन जाएगी। इसमें से 8 जो है शॉर्ट ऐसे होंगे जिस जो उसको मल्टीप्लाई करे 5 से, और 2 जो है इसमें लॉन्ग इसे क्वेश्चन। तो ये जो इस तरह टोटल मार्क्स आप देखें कि हेमाटोलॉजी का टोटल मार्क्स 14 है, इम्प्लीमेशन रिपेयर की 14 है, हर एक की जो है यहाँ पे टोटल मार्क्स दी गई हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अब स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, एज वेल एज टीचर के लिए भी हेल्पफुल है, कि जो पैथोलॉजीज हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस की थी कि जिस CIV एंड CU जो है कंस्ट्रक्ट अंडर रिप्रेजेंटेशन जो है, या जो है यहाँ पे CIV है, ये से हमारी जो बहुत बड़ी हद तक जो है हम ये अवॉइड कर सकते हैं। अब न सिर्फ ये तो सिर्फ कंटेंट रिलेटेड हो गया, बाकी जो डिफरेंट हमसे गलतियां अक्सर होती हैं एमसीक्यूज में किस तरह की, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में पे डिस्कस करेंगे, कि जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इन कंटेंट एनी पैथोलॉजी की, यानी अंडर रिप्रेजेंटेशन या वो अंडर रिप्रेजेंटेशन को तो हम इस तरह मैनेज करेंगे थ्रू द ब्लूप्रिंट। लेकिन अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हुए वेरिएंस आ रही है या बाकी जो फ्लॉज अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं, ग्रामेटिकल में गलतियां आ जाती हैं, टू लॉन्ग आ जाते हैं, वैसे क्लू आ जाती हैं, पहले से उनको पता होता है, इसमें से उनके लिए एक ऑप्शन होती है विच विल हेल्प देम, स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे टेस्ट वाइजनेस जो गलती है कि उसको हम किस तरह जो है देखेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि कॉमनली जो हमसे गलतियां होती हैं कि टेस्ट रिलेटेड टू टेस्ट वाइजनेस आर रिलेटेड टू द इररिलेवेंट डिफिकल्टी, ये हमारे जो है कौन कौन सी फ्लॉज है, जैसे पहले हम रिलेटेड टू टेस्ट वाइजनेस डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द रिलेटेड टू इररिलेवेंट डिफिकल्टी। दैट वाज ऑल अबाउट the blueprint of the test we have discussed in detail. Thank you so much to all of you.